Hey dosto, I'm Kalpana Jain and I'm back with another interesting topic, that is IRDAI. This is an important topic for all the undergraduate students, and questions regarding this topic has been appeared in many competitive exams, and the notes for the same is given in the description below. So let's start. What is IRDAI? IRDAI is an Insurance Regulatory Development Authority of India. It is a statutory body which regulates insurance business and also checks the orderly growth of it in India. IRDAI Act was constituted in 1999 but came into existence from April 2000. This is very important that the act was constituted in 1999 but came into existence from April 2000. Shri R.N. Mehrotra, the former governor of RBI, formed a committee and recommended three things. The first one is to have a private sector involvement. The second one is to have foreign sectors in insurance business, and the third one is have insurance regulatory body. So what happened before 1999 was there were only private sector which were running the insurance business in India. So, this committee recommended that we need to involve private and also foreign sectors in insurance, and we need to have a regulatory body. For example, we have RBI in India to control commercial banks. We have SEBI to control money market and capital market. Similarly, there is a need to control insurance business, hence IRDAI came into existence. So क्या होता था कि 1999 से पहले इंश्योरेंस मतलब सिर्फ पब्लिक सेक्टर तक ही सीमित था, और श्री R.N. मेहरोत्रा ने इन्होंने क्या किया कि एक कमेटी को बनाया और उस कमेटी से बातचीत करते हुए उन्होंने कुछ सलाह दी कि हमें प्राइवेट और फॉरेन विदेशी कंपनियों को भी हमारे देश में इंश्योरेंस बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मौका देना चाहिए। और जैसे हमारे देश में आरबीआई हमारे सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, जैसे सेबी है हमारे देश में ताकि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट कंट्रोल हो सके, वैसे ही एक इंश्योरेंस बिजनेस को भी कंट्रोल करने के लिए इंश्योरेंस का जो व्यापार हो रहा है, जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जो पैसे डाले जा रहे हैं, उसको भी कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी की आवश्यकता है, और उस वजह से IRDAI का स्थापना किया गया था। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मुख्य बात यह है कि IRDAI का एक्ट आया था 1999 में, पर इसे लागू किया गया था अप्रैल 2000 में। सो द एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस constituted in 1999 but came into existence from April 2000. So let's learn the next topic, that is organizational structure of IRDAI. As per section 4 in IRDAI, we need to have mainly 10 members in IRDAI. The first one is the chairman, and the current chairman of IRDAI is Mr. Subhash Chandra Kuntia, and 5 full-time members and also 4 part-time members, and all of them are appointed by the government. So एक IRDAI में 10 लोग, मुख्य 10 लोग होते हैं। पहला मुख्य होता है चेयरमैन, वो है अभी सुभाष चंद्र कुंटिया, ये अभी के IRDA के चेयरमैन हैं। और इसके बाद आते हैं 5 फुल टाइम मेंबर्स और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स। तो इन सब लोगों को मिला के 10 मुख्य लोग होते हैं, और ये सारे ही लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपॉइंट हुए होते हैं। एंड द चेयरपर्सन इज़ फॉर 5 years and his age should not exceed 60 years. जो चेयरपर्सन होता है वो 5 साल के लिए उनको लागू किया जाता है, और उनके
60 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उनकी उम्र जो है 60 साल के साथ ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और एंड द सेकेंड वन इज़ द 5 full-time members are also for 5 years and they should not attain the age of 62 years. And the third one is the part-time members, they are also usually appointed for 5 years and not exceeding the 5 years. इन तीनों ही लोगों को, जैसे कि चेयरमैन, 5 full-time members और पार्ट-टाइम मेंबर्स, इन 10 लोगों को भी हम 5 साल से ज़्यादा के लिए अपॉइंट नहीं करते. 5 साल तक ही इनको अपॉइंट किया जाता है और ये सारे अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही हुआ जाता है. IRDA का अभी हेडक्वार्टर्स इज़ इन हैदराबाद. सो what happened basically was in 2000 when IRDAI came into existence, the headquarters was in Delhi, but exactly after a year the headquarters was shifted to Hyderabad. जब IRDA लागू हुआ था, जब उसकी स्थापना हुई थी, तो उसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में था, पर 1 साल बाद 2001 में उसका हेडक्वार्टर्स को बदल कर हैदराबाद कर दिया था. और आपको ये याद रखना है कि अभी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में ही है. So we'll learn the next topic, that is functions and powers of IRDAI. This is mainly asked for undergraduate students. The first one is to issue the certificate of registration and also to renew, modify and withdraw, suspend and also cancel. And so this basically means that if a person has to do insurance business, or if the company has to go for an insurance business, then they must have a license, that is they must have a certificate of registration which is given by the IRDAI. So if IRDAI approves your registration, then only you can start a insurance business in India. And also IRDA has a right to suspend or even cancel your registration if you are doing any inappropriate things in the business. They have the authority to cancel it. So पहला मुख्य कार्य जो IRDA करती है वो ये है कि अगर आपको इंडिया में, भारत में अगर आपको कोई भी इंश्योरेंस बिजनेस को चलाना है, तो उसके लिए आपको IRDAI से एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि लाइसेंस की तरह होता है, वो आपको उनसे ही मिलेगा. और अगर आप कोई भी लापरवाही या फिर कोई गलत काम कर रहे हैं आपके बिजनेस में, तो आपका लाइसेंस कैंसिल भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं. तो ये सारे अधिकार सिर्फ IRDA पर को ही होते हैं. देन द सेकेंड वन इज प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ policy holders. This is an actually obvious thing which was the reason for the establishment of IRDAI. Basically before that there was nothing, policy holders were not given anything to protection, and there were no things that which would even let them to claim money for, especially this was for the settlement of claims. If there is anything happening and to get a proper settlement of claim, there this was established. So क्या होता था कि प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, ये एक सबसे बड़ी मेन वजह है IRDA के लागू होने के लिए. क्योंकि पहले क्या होता था, पॉलिसी होल्डर्स को, अगर जो पॉलिसी होल्डर्स, जब फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंश्योरेंस करवाया है, तो मुझे क्या होता था, अगर ठीक से पैसे नहीं मिलते थे, अगर कोई प्रॉब्लम हुई और मुझे इंश्योरेंस का अमाउंट क्लेम करना था, तो मुझे ठीक से पैसे नहीं मिलते थे या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, तो उस वजह से ही IRDA आया था. तो ये एक मेन रीज़न भी कह सकते हैं, ये फंक्शन भी है, ये पावर भी है, और एक मेन रीज़न भी है IRDA का एस्टैब्लिशमेंट में. ऑन द नेक्स्ट वन इज स्पेसिफाई द qualification and practical training for the insurance intermediaries and agents. So whoever wants to become an insurance agent, or he wants to work in insurance as a broker or an intermediary, then he must have certain qualification. Right now the qualification is a degree. You can go with a degree also.
but you need to have a good high percentage in your degree also. And if you are pursuing post graduation, even if you are not completed and you are pursuing student, then also you can write the exams and you can also be a part of IRDAI. So whoever is interested, please do check out the website of www.irdai.com, which gives you the more information about it. But if you are pursuing your graduation or post graduation, you can definitely try for this exams. They have a good pay scale also. सो क्या होता है कि अगर आप IRDAI, आप एक अगर इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं या फिर इंटरमीडिएट बनना चाहते हैं या फिर कुछ इस IRDAI के अंदर में कोई पार्ट एक नौकरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, ये सारी ही बातें IRDAI ही आपको सजेस्ट करता है। और अगर अभी के लिए तो फ़िलहाल के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आप ये एग्ज़ाम लिख सकते हैं, और अगर आप इस एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे अंक आए तो आपको कुछ अच्छे से इसमें नौकरी भी मिल सकती है। और ये ज़रूरी है कि आपको जो पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आप जो डिग्री कर रहे हैं ना, जैसे कि कॉमर्स डिग्री जो भी कर रहे हैं आप, उसमें आपको बहुत अच्छा परसेंटेज मिलना चाहिए, वरना आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन लिखने का मौका नहीं मिलता है। Then the next point is specify the code of conduct. So what is a code of conduct? Code of conduct is nothing but the rules and regulations. Now this rules and regulation is for the investigation and for the settlement of claims. So anyway, if the insurer has to settle a claim, he has to investigate properly, and to investigate there are some rules and regulations which are specified by IRDA, and the insurance company should go and follow as per the rules given by the IRDAI. तो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स, जो आप रूल्स बोलते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि IRDAI ने पहले से ही रूल्स नियम लिख दिए हैं, और उस नियम के प्रकार ही इन्वेस्टिगेशन होना है, और अगर आपको कोई क्लाइम्स में मिलता है तो उसी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली ही मिलता है। देन द नेक्स्ट वन इज लेवी फीस एंड अदर चार्जेस. So this means obviously for any carrying out any process, any purpose, they'll charge you some fees and also the other charges. And this act was basically in that the rules and regulation only they have mentioned for any process and for the claims you need to pay certain fees and charges. इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ इतना कहता है कि अगर ये प्रोसेस पर्पस ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट इसीलिए लाया गया था ताकि कुछ फीस और चार्जेस कलेक्ट किया जा सके। अब ये देखिए, ये तो बहुत ही मामूली सी चीज़ है कि हर कोई चीज़ में आपको कोई प्रोसेस कंप्लीट करना है, कुछ भी करना है तो सर्टेन फीस तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। देन द नेक्स्ट वन इज़ control and regulate the rates and terms and conditions that may be offered by insurer in respect of general insurance business. So this says that you can insurance company should not give any impossible terms and conditions. So IRDA has first only specified what are the terms and conditions for you have to give for the insured person. For example, if you see, I have mentioned here general insurance business. So that means terms and conditions apply for general insurance mainly, but not for the life insurance, because usually you don't have a control on the life, but you have control on the property. So the terms and conditions are is regulated and controlled, and this is also being mentioned in the section 14 of IRDA Act. अभी मैं जो भी पावर्स एंड फंक्शंस बोल रही हूँ
वो सेक्शन 14 IRDA एक्ट के अकॉर्डिंगली ही बोल रही हूँ, ये मैंने लिखे नहीं हैं, ये इनके सेक्शंस में ही मेंशन किए गए हैं। और जैसे कि ये पॉइंट कहता है कि अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन लागू होती है, वो यूजुअली जनरल इंश्योरेंस पर लागू होती है, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस यूजुअली एक प्रॉपर्टी होती है, पर ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए लागू कम होती हैं, क्योंकि आपके लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं होता, तो वहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लिख सकते। सो इसीलिए ये जनरली जनरल इंश्योरेंस पर होता है, और ये सभी सेक्शन 14 में मेंशन किए गए हैं। देन द नेक्स्ट वन इज़ रेगुलेट द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनीज। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूजुअली इंश्योरेंस बिजनेस भी आप इंश्योरेंस कंपनी भी स्टार्ट इसीलिए करते हैं ताकि आपको उसमें प्रॉफिट हो, बिना प्रॉफिट तो कोई स्टार्ट करेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या कहता है, IRDAI एक डायरेक्शन देता है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आपको पैसे डालने हैं ताकि आपको वहाँ से प्रॉफिट होए, और आपको कैसे लोगों को पैसे देने हैं, क्लाइम्स कैसे सेटल करने हैं, इन सारी चीज़ों को IRDA के गाइडलाइंस में आपको दिया जाता है। Then the next one is regulate maintenance of margin of solvency. This is an important one. Here, margin of solvency means the extent to which your assets can cover your liabilities. मतलब कि अगर आपके एक बिजनेस में असेट्स बहुत कम है और लायबिलिटीज़ बहुत बहुत ज़्यादा है, तो आपका बिज़नेस लॉस में जा सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर इंश्योरेंस बिजनेस जो है ये IRDAI के कंट्रोल में होता है, तो वो लोग आपको रेगुलेट करते रहते हैं, आपको उनको रिपोर्ट सबमिट करनी रहती है, तो उसे चेक करने के अकॉर्डिंग वो आपको सजेशंस और मेंटेनेंस कैसे करते हैं उसको आपको गाइडलाइंस देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको अपने असेट्स को बढ़ाने हैं और लायबिलिटीज़ को कम करने हैं। तो मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी का मतलब यही होता है कि आपके असेट्स इतने हों कि आपकी लायबिलिटीज़ को वो चुका सके। मतलब अगर आपके पास 200 रुपये है तो आप 50 रुपये तो लोन चुका सकेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी का मतलब है यहाँ पे। Then the next one is adjusting the disputes of between adjusting the disputes of between insurers and insurance इंटरमीडियरीज। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इंश्योरर्स एंड इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल एक एजेंट या फिर यहाँ पर इंश्योर्ड पर्सन भी ले सकते हैं। इंश्योर्ड का मतलब होता है कि जिस इंसान ने इंश्योरेंस करवाई है वो इंश्योर्ड होता है। द पर्सन हु मेक्स द इंश्योरेंस फॉर हिमसेल्फ or for herself or for the property which belongs to him or her is the insured. So if there is any dispute between the company and the customer, or if there is any dispute between the company and the agent, so in that case the dispute is settled by IRDAI. So IRDAI takes the decision, and whatever decision is taken, that is final. That is the meaning of this point. So this point says that अगर इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच में कोई डिस्प्यूट है या फिर कोई झगड़ा है, या फिर अगर वो इंश्योरेंस कंपनी और यहाँ पर इंश्योरेंस एजेंट के बीच में कोई झगड़ा है, अगर ये कुछ भी हुआ हो तो ये सेटलमेंट IRDAI ही करेगा। मतलब यहाँ पर IRDAI सेटलमेंट का मतलब होता है कि वो एक डिसीजन दे देगा, मतलब वो जो बोलेगा, वो जो फैसला लिया जाएगा वही फाइनल होगा, और इसके आगे आपको कोई चेंजेस नहीं मिल सकते। सो IRDAI जो भी फैसला लेता है वो उसी पक्ष, जिस पक्ष का सही होता है वो उस पक्ष का फैसला लेता है, और यहाँ पर बात ऐसे डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है। देन द लास्ट पॉइंट इज स्पेसिफाई द परसेंटेज ऑफ लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस to undertaken by the insurer in rural and social sector.